हम्म, तो आज हमारा टॉपिक है बाइनरी फेज डायग्राम टाइप 2। यहाँ पे हमारी टिन और लेड की डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो फेज है, एक है फेज अल्फा और दूसरा फेज है बीटा, और तीसरा है हमारा हम्म, ठीक है। तो अल्फा प्लस लिक्विड, यहाँ पे जो ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। अल्फा फेज और बीटा फेज, और बाद में इनका जो फेज एक मिक्सचर बनता है वो है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब अल्फा क्या है? सॉलिड सॉल्युबिलिटी। अल्फा इज सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ lead in tin. Solid solubility of lead in tin, and beta is solid solubility of tin in lead। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी फेज डायग्राम टाइप 2 है। ये कौन सी डायग्राम होती है? दीज आर दोज डायग्राम्स which are completely soluble completely soluble और completely soluble in liquid state and partially soluble in solid state। completely soluble in liquid state but partially soluble in solid state। ठीक है। partially soluble in solid state, these are known as binary phase diagrams of type 2। these are known as binary phase diagrams of type 2। टू example: lead and tin, lead and tin, copper silver, lead and tin, copper silver, next point is the solid solubility is maximum at 183 degrees Celsius and it decreases with temperature ठीक है। these diagrams are also known as eutectic diagrams। eutectic diagram, and the reaction which takes place is known as eutectic reaction। now what is eutectic reaction? eutectic reaction, it is the reaction in which liquid on cooling converts into two solid states, solid 1 plus solid 2। in case of tin lead diagram, our liquid is converted into alpha phase plus beta phase। this is our solid 1 and this is our solid 2। टू सॉलिड टू it is 62% tin at 183 degree Celsius, at 183 degree Celsius। next, जी बस this reaction is invariant, this reaction is invariant
as it occurs at a particular temperature and composition. Particular temperature and composition. Composition. Now, Gibbs phase rule. Gibbs phase rule for binary phase diagram. Gibbs phase rule for binary phase diagrams. F plus P is equal to C plus 1. जो हमने पहले गिब्स फेज रूल लिखा था वो लिखा था F plus P is equal to C plus 2. अब यहाँ पे क्यों लिया? Because binary phase diagrams occur at a particular pressure. F plus P is equal to C plus 1 ये ऑब्जेक्टिव में आता है. F plus P is equal to C plus 1. ठीक है. ठीक है. Next is important, which is that at eutectic point, degrees of freedom are 0. Degrees of freedom are 0. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाती है तो हमारी बाइनरी फेज डायग्राम में कैसे भरेंगे हम? F plus P is equal to C plus 1. ये हो गया 0. बाइनरी फेज डायग्राम है तो नंबर ऑफ फेजेस हमने निकालने हैं. कंपोनेंट्स होते हैं इसमें 2 और ये प्लस 1, तो P is equal to 3. अब यहाँ पे मतलब क्या है, हमारे पास कितने फेज हैं? 3. तो देयरफॉर एट यूटेक्टिक पॉइंट 3 phases exists alpha, beta and mu. So ये क्वेश्चन आ जाता है at eutectic point how many phases exist? 3. At eutectic point what is degree of freedom? 0. ठीक है. Next is our binary phase diagram of type 3. Binary phase diagram of type 3. These are formed by those materials which are completely soluble in liquid state and completely insoluble in solid state. Example: alloys of bismuth Bi, ठीक है, इंडियम जिंक, कैडमियम बिस्मथ. आज तक इसकी एग्जांपल्स ही आएंगे, अगर कहीं आई भी होगी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जांपल जो है कौन सी फेज डायग्राम की. मैनी टाइम्स क्वेश्चन आ रहा है बिस्मथ, इंडियम जिंक एंड कैडमियम बिस्मथ. बिस्मथ की अलॉय होगी, कैडमियम और बिस्मथ की फेज डायग्राम. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, जो हम अभी करेंगे. डिटरमाइन द मास
फ्रैक्शन, इससे आपका लीवर रूल भी चेक हो जाएगा। मास फ्रैक्शन आपको आता भी है या नहीं, ऑफ द फेजेस प्रेजेंट एट 184 डिग्री सेल्सियस इन द सैंपल ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है, विद 45% टिन टिन टिन। तो हमारी जो प्रीलिमिनरी डायग्राम है जो हमने बनानी है वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ये लाइन, यहाँ से ऐसे ये, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये। दिस इज 18, क्वेश्चन में गिवन है 97%। तो ये तो पता ही है 327 डिग्री सेल्सियस, और ये था 232 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिक्विड अल्फा प्लस लिक्विड, बीटा प्लस लिक्विड, ये बीटा और ये अल्फा। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये टेम्परेचर है मेरा 183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें निकालना है 184 पे। अब टेम्परेचर एक्सिस है ये, टेम्परेचर एक्सिस है ये। तो अगर हम देखेंगे तो 184 कहाँ पे आएगा, 184 जो आएगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, और ये भी गिवन है हमें, ये जो है ये पॉइंट ये है 62% ऑफ 10। ये बाकी लिख लेना यहाँ पे, लेड 100% और यहाँ 100%। ठीक है, हमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि 45% पे हमें लेड, हमें सैंपल में फेजेस निकालने हैं, अल्फा और बीटा की फ्रैक्शन निकालनी है एट 184 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये 183 है तो 184 कहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर। दूसरी बात 18 और 62 के बीच में, 18 और 62 के बीच में आएगा, यहाँ कहीं पे 45%, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे बिल्कुल इसके ऊपर, और यहाँ से वहां से एक परपेंडिकुलर ले जाएंगे नीचे। ठीक है, फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस साइड और इस साइड, टाई लाइन बना देंगे। इन शॉर्ट हमारे पास ऐसे बन गया, हमारे पास ऐसे बन गया। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए अल्फा बीटा निकालने के लिए। पहला आ गया यहाँ पे 62, बीच में आ गया 45, और यहाँ आ गया 18। यहाँ आ जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा बीटा। अब लगा दो रिवर रूल, मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ बीटा, और हमें पता है एम अल्फा प्लस एम बीटा के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो सबसे पहले अल्फा की बात करनी है हमने और बीटा की बात करनी है। तो अल्फा के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, एक्सट्रीम एंड्स को माइनस कर देंगे। 62 माइनस 18, यहाँ पे भी 62 माइनस 18। ठीक है, अब अल्फा निकालना है तो किसको करेंगे माइनस, इनको। कितना बना 62 माइनस 45। और अगर बीटा निकालना है तो कौन से माइनस होंगे, ये वाले। ये बनेगा 42 माइनस 18। तो ये आ जाता है आपका 0.38, और ये आ जाता है 0.62, और इन दोनों को प्लस करो तो 1 आ जाता है। अगर आप एक भी निकाल लो तो वो भी ठीक है, आप दूसरा माइनस कर सकते हो, जैसे एम बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम अल्फा, और 1 माइनस एम अल्फा कितना है 0.38, तो ये आ गया 0.62। एक ही क्वेश्चन है, इसको अगर हम चेंज कर देंगे 184 की जगह 182 कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये इस लाइन को काटेगा और इस लाइन को काटेगा। इसी क्वेश्चन को अगर हमें चेंज करना है तो हम इसका टेम्परेचर लो कर देंगे, 183 से नीचे कर देंगे, तो हमारे जो एंडेड टेम्परेचर्स हैं, एंड वाले पॉइंट्स हैं जो हमारे
कंपोजिशन वाले वो चेंज हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया समझ में। जी। इसमें एक और न्यूमेरिकल था मास फ्रैक्शन निकालने का, जिसमें वॉल्यूम फ्रैक्शन भी देखनी पड़ती है, बट वो हम नहीं करेंगे, वो गेट और आईएएस लेवल में आ चुका है एक बार। ठीक है, उससे पहले हम करेंगे ह्यूम-रॉथरी रूल। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूम-रॉथरी रूल। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, दिस रूल इज यूज्ड, this rule is used this rule is used to set conditions for formation of alloys. This rule is used to set conditions for the formation of alloys. इसमें हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। पहला आता है हमारे For पास the formation of alloys. For the formation of alloys having unlimited solid solubility. Unlimited solid solubility. ठीक है। अनलिमिटेड सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ह्यूम-रॉथरी रूल में सबसे पहला फैक्टर क्या होता है हमारे पास? साइज फैक्टर। साइज फैक्टर ये कहता है कि एटम्स और आयंस जो है वो सिमिलर साइज के होने चाहिए। पहला पॉइंट आता है सिमिलर साइज। उनका जो रेडियस है वो ±15% की रेंज में होना चाहिए एक दूसरे के, तभी वो अलॉय बनाएंगे, तभी वो अलॉय बनाएंगे, तभी वो अलॉय बनाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अभी हमने किया नहीं है, बट अगले आने वाले टॉपिक्स में हम करेंगे। वो कहता है कि इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे मस्ट हैव सेम वैलेंसी। अगर सेम वैलेंसी नहीं होगी, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन में चले जाएंगे, नहीं तो वो कंपाउंड बना लेंगे। सीधी बात ये है। फिर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे मस्ट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे मस्ट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एक आईएएस में क्वेश्चन आया था, इनका सीक्वेंस बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर साइज, फिर वैलेंसी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो पहले, फिर साइज, फिर वैलेंसी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं कुछ तरह के मटेरियल्स जिनकी हमने बात करनी है। सबसे पहला आता है हमारा मटेरियल, मटेरियल वो हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके कलरफुल होते हैं। डायामैग्नेटिक, डाया मतलब दो, दो का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और दीज कंपाउंड्स आर कलरलेस। सम एक तीसरे तरह का होता है, उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं। ठीक है, ये कई बार पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है और कई बार ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन कई बार इसकी वैलेंसी 2 होती है, कई बार इसकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, ऐसे पैरा और डाया, तो इसकी अपनी मर्जी है ये पैरा बनेगा कि डाया बनेगा। तो दिस मटेरियल इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दिस मटेरियल इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल आयरन। next is very important, cooling curve for pure iron. Cooling curve for pure iron. यहाँ पे आ जाता है हमारा टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे आता है हमारा टाइम। हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक ऐसे लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर ऐसे, फिर सीधी, स्टेप्स बना लो जैसे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। कई बार सही नहीं पड़ती लाइन। फिर स्टीप, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। दिस इज कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। टेम्परेचर हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे जो है ये लिक्विड रहता है, सबसे ऊपर रहता है लिक्विड। फिर ये जो है ये रीजन, ये आता है डेल्टा आयरन और इसका स्ट्रक्चर रहता है बीसीसी। इसका स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रेट लाइन लगाना मेरे से लगी हुई। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 1539 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके नीचे आता है गामा आयरन, इसका रहता है एफसीसी और ये रहता है नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, ये वाला जो टेम्परेचर है ये है 910 डिग्री। फिर आता है अल्फा और बीसीसी, ये रहता है हमारा नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक, ये वाला जो टेम्परेचर है ये है 768 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे अल्फा आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर और ये रहता है हमारा मैग्नेटिक। ठीक है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं ये वाली, ये वाली, ठीक है, दीज आर लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन। लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या आई, जहां पे हमारा फेज चेंज हो रहा है। जहां पे आपको ये लाइन दिखेगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। दिस इज कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। दिस इज कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आता है, कई बार ये भी आता है कि फ्रॉम व्हेन वी टेम्परेचर डिक्रीज, तो सीक्वेंस क्या होता है फिजिक्स का, डेल्टा आयरन जो 1500 डिग्री 1500 और 1400 के बीच में रहता है। फिर गामा आयरन जिसका स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी है, ये बताऊंगा आगे क्या होता है। ठीक है, फिर अल्फा आयरन और बीसीसी नॉन मैग्नेटिक एंड अल्फा बीसीसी मैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा
ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया कूलिंग कर्व और प्योर आयरन। ठीक है, अब होता क्या है, इसी कर्व से जो है वो फेज डायग्राम बनती है। कैसे बनती है, ये जो है, जैसे सपोज ये मेरी फेज डायग्राम बनी थी, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसे बनती है, ये जो लेटेंट हीट वाले पॉइंट्स होते हैं ना, जो लेटेंट हीट वाली लाइन है, उन सब लाइनों को जोड़ के हमारी फेज डायग्राम बनती है, क्योंकि फेज चेंज वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप देखना कि जो लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ के हमारी फेज डायग्राम बनती है। तो जो आयरन कार्बन की बनेगी वो उसके लेटेंट हीट ऑफ पॉइंट्स को जोड़ के, उन पॉइंट्स जो ट्रांजिशन लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन है उसको जोड़ के हमारी फेज डायग्राम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बड़ा जरूरी, जो हर पेपर में आएगा, बार बार आता है, वो है आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, पर इससे पहले अरे ना, आयरन कार्बन डायग्राम, बट इससे पहले हम करेंगे फेजेस ऑफ आयरन, ऑफ आयरन। ठीक है, यहां लिखोगे फेज और यहां लिखना है स्ट्रक्चर। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और सीधा सीधा आंसर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फेज आता है डेल्टा फेराइट। फेज से तो आपको पता ही है क्या होगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट केमिकली होमोजेनियस एंड मैकेनिकली सेपरेबल सब्सटेंसेस नोन एज फेज। दूसरा फेज हमारा आता है गामा ऑस्टेनाइट। तीसरा फेज आता है हमारा अल्फा फेराइट। चौथा फेज हमारा आता है सीमेंटाइट। और पांचवा फेज हमारा आता है मार्टनसाइट। मार्टनसाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आता है डेल्टा फेराइट का बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसका आता है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब, फिर आता है हमारा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फिर आता है कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बस की तरह होता है बट एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अवर मार्टन साइड, इसका आता है बी सी टी बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ठीक। ठीक है, दीज आर फेजेस ऑफ आयरन एंड देयर स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आयरन के कितने कितने फेज हैं, आयरन के कितने फेज हैं, नंबर ऑफ फेजेस ऑफ आयरन 5, नंबर ऑफ फेजेस ऑफ आयरन 5। 5। ठीक है, इसके अलावा कोई और फेज नहीं है, इसके अलावा और कोई फेज नहीं है, इसके अलावा और कोई फेज नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बोले कि इसके अलावा भी कोई फेज है तो वो फेज नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछते हैं, वो इधर उधर से कोई चीज लिख देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ आयरन, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है यही 5 फेज है, इसके अलावा और कोई फेज नहीं है। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे मिक्सचर होगा, वो फेज नहीं होगा। मिक्सचर का मतलब है उसकी कोई यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी और कोई यूनिक कंपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, दैट इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम।
आयरन कार्बन डाइग्राम। सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखो आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम हैज थ्री invariant reactions, three invariant reactions, three invariant ठीक है। reactions। ठीक है, और इनवेरिएंट रिएक्शंस क्या होते हैं? इनवेरिएंट रिएक्शंस, invariant reactions are those reactions, invariant reactions are those reactions in which degree of freedom is zero. Degree of freedom is zero. Degree of freedom is zero. तो आयरन कार्बन डायग्राम में कितने रिएक्शन है? 3 रिएक्शन है, इनवेरिएंट रिएक्शन है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। अगली चीज जो नोट करने वाली है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जेई में भी आया हुआ है और आईईएस में भी आया हुआ काफी बार। वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट प्रेजेंट इन आयरन कार्बन डायग्राम। क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग की जगह नहीं लिखता, मैं सीधा लिखता हूँ विच ऑफ द फेज ऑफ आयरन इज नॉट प्रेजेंट इन आयरन कार्बन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फेज है? उस फेज का आंसर है मार्टन साइट। मार्टन साइट वो फेज है जो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? ट्रिपल टी डायग्राम में। कहाँ मिलेगा? ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम भी हम आगे करेंगे। टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास सबसे ऊपर एक रिएक्शन आती है, वो आती है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, फिर उसके नीचे आती है यूटेक्टिक रिएक्शन, और फिर लास्ट में आती है हमारी यूटेक्टोइड रिएक्शन जो यहाँ पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फेज आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमारा जो फेज बनता है वो बनता है डेल्टा, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बीसीसी। फिर बनता है हमारा गामा, जिसका नाम है ऑस्टेनाइट, और उसका स्ट्रक्चर है एफसीसी। और फिर उसके बाद जो हमारा फेज बनता है वो बनता है अल्फा, अल्फा, जिसका स्ट्रक्चर है बीसीसी। और फिर यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे कास्ट आयरन वाली जगह पे, तो हमारा बनता है सीमेंटाइट, Fe3C। Fe3C का मतलब होता है सीमेंटाइट, और स्ट्रक्चर में इसका बता चुका हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक। टेम्परेचर जो है इसके इसके नोट कर लेना, क्योंकि रिएक्शंस में आगे काम आते हैं। फिर नीचे आ जाओ वाई एक्सिस पे, जहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताई है 0.008%, 0.83% और 2.1%। 0.008 से लेके 2.1% तक जो हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं स्टील, और 2.1 से लेके 6.67% तक कार्बन जिनमें होता है उनको हम कहते हैं कास्ट आयरन। उनको हम क्या कहते हैं? कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चले। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है स्टील। स्टील और कास्ट आयरन में डिफरेंस, अगर कार्बन की परसेंटेज 2.1 या 2% से कम होगी उसको हम कहेंगे स्टील, और अगर कार्बन की परसेंटेज 2.1 से लेके या 2% से लेके 6.67% तक होगी उसको हम कहेंगे कास्ट आयरन। ठीक है, फिर इनमें आगे डिफरेंशिएट करते हैं हम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में आ चुका है। उससे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन आयरन कार्बन डायग्राम, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन आयरन कार्बन डायग्राम। और इससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ, आयरन के हमने 5 फेज किए, अल्फा
गामा, डेल्टा, Fe3C और मार्टनसेट। इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अल्फा के बाद तो बीटा आता है, तो गामा कैसे आ गया। पहले कुछ सालों पहले हम अल्फा बीटा गामा फेज लेते थे, बट हमने ये चीज देखी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अल्फा का स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा का जो स्ट्रक्चर था वो सेम था, स्ट्रक्चर जो था वो सेम था, बस एक ही चीज वेरी कर रही थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उन्होंने देखा एट 768 डिग्री सेल्सियस, at 768 degree Celsius, there is no change in phase, there is no change in phase, change in phase, only transformation is that, only transformation is that iron loses its magnetic properties, iron loses its magnetic properties, iron loses its magnetic properties। ठीक है, ठीक है, आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो उसको हम कहते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट पॉइंट इज नोन एज Curie point, and the corresponding temperature is known as Curie temperature, and the corresponding temperature is known as Curie temperature, and the corresponding temperature is known as Curie temperature, which is 768 degree Celsius, which is 768 degree Celsius। तो कई बार क्वेश्चन आता है वो टेम्परेचर जहां पे आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाता है उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, या उस पॉइंट को कहते हैं हम क्यूरी पॉइंट, और वो होता है 768 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर ऑकरिंग इन आयरन कार्बन डायग्राम, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है, जो सबसे पहली रिएक्शन आती है, जो सबसे पहली रिएक्शन आती है उसको हम कहते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, वन सॉलिड प्लस लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉलिड फेज, सॉलिड प्लस लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉलिड फेज, S1। और इसको हम अगर लिखेंगे तो डेल्टा प्लस लिक्विड ऑन कूलिंग गिव्स अस गामा। कितने टेम्परेचर पे होती है, 1495 डिग्री सेल्सियस पे और 0.18% कार्बन पे। ये टेम्परेचर और कंपोजिशन जो है वो पूछी जाती है। ये आ गया हमारा डेल्टा फेराइट, ठीक है, और ये आ गया हमारा ऑस्टेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, this reaction occurs when there is large difference in melting point, when there is large difference in melting points of phases। Next is our eutectic reaction। eutectic reaction क्या कहती है, eutectic reaction कहती है one liquid phase converts into two solid phase। ये मैंने पहले भी करवाया था, one liquid phase converts into two solid phase। ठीक है, तो लिक्विड ऑन कन्वर्ट्स इनटू गामा प्लस Fe3C, तो ये आती है 1150 डिग्री सेल्सियस और 4.31% कार्बन, 1150 डिग्री सेल्सियस 4.31% कार्बन, तो गामा प्लस Fe3C बनाते हैं। दिस इज अवर यूटेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो थर्ड रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, इसको कहते हैं यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन।
यूटेक्टाइड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारा एक सॉलिड फेज कन्वर्ट्स इनटू अदर टू सॉलिड फेजेस, ठीक है। when one solid phase converts into two different solid phases, for example in this diagram gamma converts into alpha plus Fe3C 728 डिग्री सेल्सियस और 0.8% कार्बन। कुछ बुक्स में 725 भी दिया हो सकता है, कोई कोई मेटलर्जी की किताब में 725 भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना अल्फा प्लस Fe3C, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं परलाइट। परलाइट, इसको हम कहते हैं परलाइट, ठीक है। इसकी ऐसे डायग्राम बनती है, ये ऐसे होता है और इसमें यूं बनते हैं फेस, ऐसे लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो डार्क वाला पोर्शन है, ये लाइट वाला पोर्शन होता है अल्फा, और ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये होता है Fe3C, ठीक है। तो सबसे पहला ऊपर हेडिंग लिखो परलाइट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट ए फेज, इट इज नॉट ए फेज। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर। थर्ड पॉइंट, it is light and dark band structure, it is light and dark band structure, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो जी। चौथा पॉइंट लिखो, it is formed by diffusion, it is formed by diffusion, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट प्लेट्स होती हैं अल्फा की और Fe3C की, अल्फा की Fe3C की। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, लाइट और डार्क बैंड। इट इज नॉट ए फेज, इट इज ए मिक्सचर। किसका मिक्सचर है, अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर। चौथा, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन, इट इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देयर इज फोर्थ काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच डज नॉट ऑकर इन आयरन कार्बन डायग्राम। देयर इज फोर्थ काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच डज नॉट रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हिच डज नॉट ऑकर इन आयरन कार्बन डायग्राम, व्हिच डज नॉट ऑकर इन आयरन कार्बन डायग्राम, व्हिच डज नॉट ऑकर इन आयरन कार्बन डायग्राम। इसका नाम होता है पेरिटेक्टॉइड। जो होती है उसका नाम होता है पेरिटेक्टिक, जो नहीं होती उसका नाम होता है पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। एक चौथी तरह की रिएक्शन होती है जो आयरन कार्बन डायग्राम में नहीं होती, उसका नाम है पेरिटेक्टॉइड रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन टू सॉलिड फेजेस combine to form third solid phase upon cooling. Two solid phases combine to form third solid phase upon cooling. या ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा टेंड्स टू गिव अस गामा, अल्फा प्लस बीटा टेंड्स टू गिव अस गामा। एक और रिएक्शन होती है जो कभी कभी डिस्कस कर लेनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द लीग, उसका नाम है मोनोटैक्टिक, मोनोटैक्टिक रिएक्शन। मोनोटैक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, एक लिक्विड कन्वर्ट होता है लिक्विड 2 प्लस सॉलिड फेज में, L1 कन्वर्ट्स इनटू L2 प्लस सॉलिड 1,
एक लिक्विड बनता है और इसका सॉलिड बनता है। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब हम स्टील पे आ जाते हैं दोबारा, स्टील्स और उसकी कंपोजिशंस। ठीक है, अब जब हम डायग्राम देखते हैं तो स्टील के पास जो रिएक्शन हो रही है, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, स्टील के पास जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन है? स्टील वाले रीजन में यूटेक्टाइड रिएक्शन। और जो कास्ट आयरन के रीजन में हो रही है वो है यूटेक्टिक रिएक्शन। जो कास्ट आयरन के रीजन में हो रही है वो हो रही है यूटेक्टिक रिएक्शन, और जो स्टील के रीजन में हो रही है वो हो रही है यूटेक्टाइड रिएक्शन। तो अब हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, स्टील और उसको। तो इससे पहले आती है हमारे स्टील्स और इनकी क्लासिफिकेशन। तो पहले हम करते हैं हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, फिर लिखेंगे हम हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, फिर हम लिखेंगे हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, फिर हम लिखेंगे हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्वेश्चन इनका आता है कंपोजिशन का, तो इसकी कंपोजिशन होती है 0.008 से लेके 0.83% ऑफ कार्बन, और यहाँ पे होती है 0.83% से लेके 2.1% ऑफ कार्बन। यहाँ पे 2.1% ऑफ कार्बन से लेके 4.3% ऑफ कार्बन, और यहाँ 4.3 से लेके 6.67% ऑफ कार्बन। ये चार कंपोजिशन है, इनको गोटा मार दो, पेपर में आती ही आती है ऑलमोस्ट हर साल, नहीं तो हर दूसरे साल किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी तरीके से ये चीज पूछी जाती है। तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, हाइपो का मतलब होता है यूटेक्टाइड पॉइंट से पहले। अगर ये यूटेक्टाइड पॉइंट है, डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे मैं कौन सा कलर यूज करूं, हरा कर देते हैं। ये वाला जो रीजन है, ये वाला ये आएगा हाइपो मतलब कम, यूटेक्टाइड से पहले, तो हाइपो यूटेक्टाइड वाला आ गया ये। और ये वाला आता है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ये वाला आता है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और ये वाला आता है हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक है, अगर डायग्राम में देखना भी यहाँ पे पता चलेगा आपको। चले नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर एक और चीज है, उसका नाम है सीमेंटाइट। उसका नाम है सीमेंटाइट। व्हाट इज सीमेंटाइट? मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम solid solubility of carbon in iron is known as cementite। ठीक है, और कितना मैक्सिमम कार्बन हम इसमें डाल सकते हैं, कितना कार्बन हम आयरन में डाल सकते हैं? 6.67% तक। इससे ज्यादा कार्बन इसमें डलता ही नहीं है, इससे ज्यादा कार्बन हम आयरन में नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो क्या आएगा? कार्बन बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, सीमेंटाइट में मैक्सिमम कितना होता है कार्बन? 6.67%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक और चीज जो हमने लिखनी है वो है लेड ब्यूराइट। ठीक है, इट इज ए यूटेक्टिक मिक्सचर, ये भी फेज नहीं है। इट इज ए यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट at 1130 डिग्री सेल्सियस
एट 4.3% कार्बन। तो डायग्राम में देखोगे तो कहाँ पता चलेगा आपको, डायग्राम पे जाते हैं अगर हम, यहाँ पे बनता है लेड बोरेट, लेड बोरेट, ठीक है, गामा प्लस Fe3, दिस इज अवर लेड बोरेट। परलाइट मैंने करवा दिया, ठीक है। और लास्ट जो हमें चीज पता चलती है वो है, जिसका हमने डिस्कस करना, वो है बेनाइट। बेनाइट, इट इज decomposition, it is decomposition product of austenite. It is decomposition product of austenite consisting of an aggregate of ferrite and carbide, ferrite and carbide। तो ये होगी हमारी आयरन कार्बन डायग्राम खत्म। अगर कुछ नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना, पूरी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करो, अगर कहीं पे लगता कोई गलती है, कोई टेम्परेचर ऊपर नीचे है, तो बुक का रेफरेंस डाल दो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कहाँ पे क्या चेंज करना है।